मैनू शौक मदीने जावण। और अपने नबी का गा रहे हैं। कुरान ना कल मिटा, कुरान आज मिटा, कुरान ना मिटेगा। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आ जाते रहे। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आ जाते रहे। ना मिटा है ना मिटेगा कभी। और सबरा चर्चा तेरा नबी के दीवान तुमने देखा। कुछ दिनों पहले एक मसला चला, एक चला 26 आयतों को निकाला जाए। एक दिन और एक मसला चला, 3 तलाक का मसला चला। तो 3 तलाक का मसला खत्म किया जाए। देखते हो कि नहीं देखते हो? कोई बात नहीं है। एक दिन एक बात चली, बोले अजान फजर की बंद कर दो। मुसलमान खामोश बैठा है। चली भी नहीं चली, आवाज आई अजान फजर की बंद कर दो। मुसलमान खामोश बैठा रहा। बोले 3 तलाक का मसला, मुसलमान खामोश बैठा रहा। बोले मस्जिदों की मीनारों से लाउड स्पीकर उतार कर मुसलमान खामोश बैठा रहा। फिर मसला चला कि कुरान से 26 आयतों को निकाला जाए। मुसलमान खामोश बैठा रहा। एक दिन फिर लोहा गरम का चोट मारी, बोले गोश्त बंद। मुसलमान बोला आप कैसे जिएंगे? अजान बंद तो जीएगा। मसाइल चेंज होगा तो जीएगा। शरीयत बदली जा रही है तो नहीं बोल रहा। जब एक गोश्त की दुकान पर गया, आप कैसे जिएंगे? गोश्त खाने का बनेगा मुसलमान। मैं नहीं कभी क्यों नहीं कहा गोश्त बंद करो, जी लेंगे। खाने बंद करो, जी लेंगे। बच्चों की औलादियां मांगो, दे देंगे। अगर कुरान पर उंगली उठाई, हदीस की उंगली उठाई, उलमा पर उंगली उठाई, मसाजिदों पर उंगली उठाई, सुन लो दस्त तो दस्त है। करिया मुसलमान मरा नहीं है, मुसलमान सो रहा है। जाग जाओ, जागो, मस्जिदों को आबाद कर दो। एक नेता ने किसी से कहा जिस दिन मुसलमान जुमे के बराबर फजर की नमाज में आ जाए, उस दिन मुसलमान को मत छेड़ना। जिस दिन मुसलमान फजर की नमाज में जुमे के बराबर आ जाए, उस दिन मत छेड़ना। बोले क्यों? बोले जागे आज जागे उनके सिर पे हमला करना। हम क्यों जागे? हम क्यों जागे? बच्चियां हमारी लग रही है, हम तमाशे देख रहे हैं। हमारी बच्चियों के जगह खींचे जा रहे हैं, हम तमाशे देख रहे हैं। 8-8 साल की बच्चियों के साथ गलत चाल हो रहा है, हम तमाशे देख रहे हैं। रोजे की हालत में बच्चियों के कपड़े उठाकर उनके साथ गलत काम किए जाते हैं। मुसलमान तमाशे देख रहा है। उलमा की तालियां पकड़ कर काटी जा रही है, मुसलमान तमाशे देख रहा है।
قوم کے نوجوان جاگ جاتے ہیں نا وہ قوم جاگ جاتی ہے. جب تم تجارت میں جاؤ تب تم نماز پڑھو, جب تم دکان پہ رہو تب تم نماز پڑھو, جب تم کاروبار میں رہو تب تم نماز پڑھو, جب تم کھیت میں رہو تب تم نماز پڑھو. جہاں بھی ہو پہلے اپنی بارگاہ میں سر جھکاؤ. دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے گی جب پورے گاؤں کے غلاموں کا حال یہ ہے تو مدینے میں رہنے والے مصطفیٰ یہ گدا بناتے ہیں. شاہان زمانہ کی جوئی محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم. میں کہہ رہا کہ ربیع نکل آیا قرآن اپنے بچوں کو پڑھاؤ, حافظ قرآن بناؤ اپنے بچوں کو. حضرت علامہ مولانا مقیم احمد صاحب کی اللہ نے میرے کان میں کہا آدھے گھنٹہ بھی بول رہا ہے, ورنہ آدھے گھنٹے کا مجھے قائد کیا گیا تھا, لیکن آدھے گھنٹے تھوڑی دیر اور ہے, آدھے گھنٹے کیا تھوڑی دیر اور ہے, صرف کام کی بات سن لے. نبی کے دیوانوں, میں اپنا درد دل کے پھولے جلوں کے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگے, گھر کے چراغ سے قرآن کے تقدس کو کوئی پامال نہیں کر سکتا, نبی کی عظمت پر کوئی پتھر نہیں اچھال سکتا, ہماری بچیوں کی طرف کوئی غلط نظر نہیں اٹھا سکتا. پہلے ہم نے اپنی بچیوں کو خود غلط نظر سے دیکھا, تب لوگوں نے سمجھا موقع بڑھیا ہے ہم بھی بچیوں کو غلط نظر سے دیکھ لیں. ورنہ اسلام بچیوں کی حفاظت کرتا ہے. اس قوم کی بچیوں کی نقاب اتارے جا رہے ہیں جس قوم نے غیر مسلم بچیوں کی حفاظت کی. اس یوپی کی بات کر رہی ہے, اسی یوپی کا ایک واقعہ سن لیا جائے اور ایمان کو تازہ کر لیا جائے. اسی بنارس کی سرزمین پر جب تک عالمگیر, آپ نے سنا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی جب حکومت تھی, بنارس کی سرزمین پر ایک مسلمان حکمران جس کا نام تھا ابراہیم, اس کو وہاں کی کوتوالی دی گئی اور وہاں بنارس میں ایک پنڈت تھا اور پنڈت کی ایک بہت خوبصورت بیٹی جس کا نام شکنتلا تھا. آج لوگ کہتے ہیں مسلمان مسلمان بچیوں کی عزت لوٹتا ہے, مسلمان ایسا کرتا ہے, مسلمان ایسا کرتا ہے. اگر مسلمان عزت لوٹتا تو غیر مسلم کی کوئی بچی آج دنیا میں زندہ نہیں ہوتی. مسلمان اگر عبادت گاہوں کو گراتا تو آج دنیا میں کوئی عبادت گاہ موجود نہیں ہوتی. ارے مسلمانوں نے کسی کو ستایا نہیں, مسلمان وہ ہوتا ہے. ایک مولا علی کے دروازے پہ بھیک مانگنے والا آیا, مولا علی کے دروازے پر ایک بھیک مانگنے والا آیا اور اس نے سوال کیا, مولا علی تم مجھے اپنے نبی کے صدقے میں خدا خدا کے واسطے اپنا ایک بیٹا بھیک میں دے دو. ہے کوئی ایسا مانگنے والا اور ہے کوئی ایسا دینے والا؟ علی کے دروازے پہ بھکاری مانگنے والے نے کہا مجھے اپنا ایک بیٹا دے دو. مولا علی دوڑ کے مولا علی نے کہا ٹھیک ہے رکو, بیٹا میرا اکیلے کا نہیں ہے, فاطمہ کا بھی تو ہے, میں اندر جاتا ہوں مشورہ کر کے آتا ہوں. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ علی اندر گئے, جانے کے بعد نبی کی بیٹی فاطمہ تو زہرا سے کہا میری ماں بہنیں اگر سنتی ہوں تو غور سے سن لے, شوہر 50 روپے 100 روپے مسجد میں لے آیا تو گھر میں رہ رہی ہے, برباد کر دے گا گھر کو, ایسی بتاتا رہیے. ارے تو سخی بن جا سخی. فاطمہ تو زہرا کا کردار دے. علی گھر میں گئے, جانے کے بعد کہا فاطمہ ایک دروازے پر مانگنے والا کھڑا ہوا اور کہتا ہے ایک بیٹا اللہ کے نام پہ مجھے دے دے. فاطمہ تو زہرا نے کہا علی اس میں سوچنے والی بات کون سی ہے؟ ارے جب اس نے مانگا ہے تو حسن کو اللہ کے نام پہ اپنے طرف سے دے دو اور حسین کو میرے دے. نبی کے دیوانوں آج اس راستے پہ آ گئے. شکنتلا پنڈت کی بیٹی بہت خوبصورت بیٹی تھی. ایک دن وہ تالاب میں نہانے کے لیے صبح جل چڑھانے کے لیے گئی. ابراہیم کوتوال نکل کے جا رہا تھا, اس کی نظر پنڈت کی بیٹی پہ پڑ جاتی ہے. اس نے پنڈت کی بیٹی کو دیکھا اور اپنے چوکیدار سے کہا یہ بچی کس کی ہے پتہ نکالو. ان چوکیدار نے پتہ نکالا, فلاں پنڈت کی بیٹی ہے. کوتوال نے فوراً اس پنڈت کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا پنڈت اپنی بیٹی کو میرے محل میں بھیج دے, میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. پنڈت ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا اور کہا سرکار آپ میری بچی کو کیسے رکھ سکتے ہو؟ آپ مسلمان ہو, میں پنڈت ہوں, میرا تمہارا جوڑ نہیں
है, दूसरी मैं गैर धर्म में अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। उसने कहा अगर तूने अपनी बेटी मेरे निकाह में नहीं दी तो मैं तेरे कुंडे को और तुझे भी साथ साथ मार दूंगा। पंडित होता हुआ घर चला गया। उसकी बच्ची ने अपने बाप को तन्हाई में रोते हुए देखा। बच्ची ने बाप का हाथ पकड़ के कहा बाबा रोने की वजह क्या है, बाबा आंसू बहाने की वजह क्या है, बाबा आंसू बहाने की वजह क्या है। पंडित ने जब अपनी बेटी को प्यार से पूछते देखा तो पंडित ने कहा बेटी बात ऐसी है, जो मुसलमानों का यहाँ मोतबार इब्राहिम है ना, उसने तेरा डोला मांगा है, उसने तेरी खूबसूरती को देख लिया है। पंडित की बेटी समझदार थी, उसने कहा बाबा जाओ मोतबार के पास चले जाओ, 1 महीने का टाइम ले आओ, 1 महीने के बाद तुम मेरी डोली को उसके दरबार में पेश कर देना। पंडित गया, 1 महीने का टाइम ले गया। शकुन फना ने अपने बाप से मुगल शहजादे का लड़कों का एक लिबास मंगाया और उस लड़की ने लड़कों का लिबास पहना, घोड़े पे सवार होकर बनारस से दिल्ली की तरफ दौड़ने लगती है। उसे पता था औरंगजेब आलमगीर जो है वो जुमे की नमाज जामा मस्जिद में पढ़ाते हैं। लोग अपनी फरियाद लेकर सीढ़ियों पर खड़े हो जाते थे, वो सुनते थे और फरमान सुनाते थे। वो लड़की जब दिल्ली में पहुंची सबसे पीछे सबसे निचली वाली सीढ़ी पर उसको जगह मिली। कच्ची हाथ में लेकर आंसू बहा रही थी, दरवाजे पे खड़ी हुई थी। मुसलमानों को आतंकवाद कहने वालों, अगर तुम्हारे पास कान है तो सुन लो। मुसलमानों को मदरसों को आतंकवाद बताने वालों, अगर तुम्हारे पास है तो कान सुन लो। वो बच्ची हिंदू गैर मुस्लिम की लड़की मस्जिद के दरवाजे पर अपनी फरियाद लिए खड़ी थी। बादशाह उतरने लगा, एक की फरियाद सुनी, फैसला सुना दिया, दूसरे की फरियाद सुनी, फैसला सुना दिया, उतरता गया, फैसला सुनाता गया। जैसे इस लड़की का नंबर आया, बादशाह ने एक नजर लड़की के चेहरे पर डाली, निगाहों को झुका लिया। अपने कंधे पर रुमाल पड़ा था, बादशाह ने अपने हाथ पर रुमाल लपेटा। लपेटने के बाद उस लड़की की पर्ची ली और अपने हाथ में कहा चल तेरा फैसला घर पे होगा। बच्ची ने कहा बादशाह ये नाइंसाफी कैसे, सब तक पर्ची तुमने ली, हाथ से हाथ मिला के ली, हाथ से हाथ मिला के ली। जब मेरी पर्ची ली तुमने हाथ पे कपड़ा लपेट के ली। तो बादशाह ने कहा एक बच्ची सुन ले, तू लड़का नहीं है लड़की है, और इस्लाम में कभी भी किसी गैर लड़की को छूने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम कहते हैं चल तेरा फैसला तेरे महल में होगा। बच्ची को औरंगजेब बादशाह देते गए, सारी बात सुन ली। सुनने के बाद कहा जाओ बच्ची अपने बाप से कह देना जिस तारीख में उसने डोला मंगाया है उसी तारीख में डोली उसके घर पहुंचा देना। वो बच्ची रोती हुई घर आती है, बाप पूछता है बेटी बता बात क्या हुई। तो उसने कहा बादशाह ने अपने आदमियों की हिमायत की है, अपने आदमियों की बात मानी है, और उसने कहा जिस तारीख में डोला मंगाया गया है उसी तारीख में डोली उसी के दरवाजे पर पहुंचा दी जाए। लेकिन बाबा मुझे एक उम्मीद है, तीसरे दिन में बादशाह के पास रही, बादशाह ने मुझे 17 मरतबा बेटी कह के पुकारा है, और जो अपनी बेटी को बेटी कह के पुकारता हो वो बाप कभी अपनी बच्ची की इज्जत लुटके नहीं दे सकता, वो कभी अपनी बच्ची के कपड़े उतरते नहीं दे सकता, कभी वो रुस्वा होते नहीं दे सकता, कभी उसकी वो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो उसकी लाज को ना बचाए। आखिरकार उसकी डोली उस इब्राहिम कोतवाल के घर जब पहुंची तो फकीरों को पैसा लुटाया जा रहा था, खैरात की जा रही थी। बदबख्त पैसे लुटा के फेंक रहा था। एक फटे हुए कपड़ों में फटी हुई गुजरी में लिपटा हुआ एक इंसान आता है और कहता है कोतवाल साहब मुझे भी कुछ थोड़ी सी भीख दे दो। कोतवाल ने जेब से पैसा निकाल के फेंक दिया, उठा ले। तो आने वाले ने कहा नहीं मैं गिरा हुआ पैसा नहीं देता, हाथ से हाथ मिला के दे दे। कोतवाल ने सोचा यार ये कहाँ से रन में धुल करने आ गया। कोतवाल ने जेब में हाथ डाल के और पैसा जैसी फकीर की तरफ बढ़ाया, उसने हाथ पकड़ के तमाचा मारा, गुदड़ी उतार कर फेंक दी, और जब देखा तो गुदड़ी में कोई फकीर नहीं था। औरंगजेब बादशाह पहले से फकीर का निराश जमीन पे आ गया था। तो हाथियों को बुलाया गया, एक हाथी के पैर में जंजीर बांधी और उस आदमी के पैर में जंजीर बांधी, दूसरे हाथी के पैर में जंजीर बांधी और दूसरे हाथी के पैर में जंजीर बांधी। एक हाथी को इधर दौड़ा दिया, एक हाथी को उधर दौड़ा दिया। बीच में से वो कोतवाल चिर जाता है। जब वो चिर गया, जब वो मर गया, तब औरंगजेब आलमगीर ने कहा बेटी मुझे पानी पिला दे। जिस दिन से तू दिल्ली
دہلی سے آئی ہے اور جب سے میں نے تیری خبر سنی ہے میں نے نہ کبھی پانی پیا ہے نہ میں نے کھانا کھایا ہے اور میں نے قسم کھائی تھی جب تک میں اپنی ہندو بیٹی کو انصاف نہیں دلا دوں گا